ਇਹ ਔਰਤ ਕਮ ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜੀਬ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19-20 ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲਪਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਿੜੀ ਵਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਲਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਐਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਗੋਂ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਖਾ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੀਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਮੇਤ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਟਪਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੋ 5 6 7 ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
कोई गल ज़्यादा नहीं सी करना, लेकिन नाराज़ हो के बैठ जाना। और अम्मी जी एने मेरे शफीक मां सी, एनी शफीक मां, अल्लाह उन्होंने आला दर्जा दिता फरमाए अगले जाना कि उन्होंने अगले दिन ही सुबह उठदियां साथ फ़ोन करना भी ना बाजी की गल है, मां कोलों नाराज़ नहीं होईदा, मां दियां ते गल्लां होंदियां ने, मां दियां गल्लां बस सुन के ते नाराज़ नहीं होईदा। पुत्तर आ मेरे कोल आई क्यों नहीं तू? अगों बीना ने जेह्ड़ा ना अपना कहना अच्छा बस ठीक है मां जी, उस वक्त तुसीं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ अम्मी जी, और हुण तुसीं मैनूं फिर कहंदे हो आ जा मैं नहीं आंदी मैं नहीं आंदी। एक दो दिन नहीं आना, फिर अम्मी जी ने एवरी डे फोन करना। मतलब मावां अपनी औलाद दे अगे जेह्ड़ा ना न्यू जांदियां ने, और औलाद अपने नखरे तां आंदियां मावां नाल, पर औलादां भी मावां दियां ही औलादां होंदियां, मापियां दियां ही औलादां होंदियां। इस गल्ले अज जो मैं कुरान पढ़नी हाँ तो मैं कुरान ही देखनी हाँ कि अल्लाह ने अपने बाद माँ बाप का दर्जा रखे। अल्लाह ताला अगर तुहानूं हदायत देंदे ने तो परवरदिगार ने कहा मेरे बातों वालदैन तुहानूं हदायत दे रहे हैं। मतलब अल्लाह ने कहा तो नहीं है फिक्रें च, लेकिन मतलब वो ही है कि ए मुसलमानों ए मोमनो मेरी इताअत करो, और उसके बाद वालदैन के साथ उसने सलूक करो, उनके साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आओ कि उनके आगे उफ़ ना करो, उफ़ ना करो। और करें कितना बड़ा लफ्ज़ है। और हम सारे बच्चे कभी ना कभी, सारी औलादें बेटियां बेटे कभी ना कभी अपने वालिदैन के आगे तलखी से बोल ही देते होंगे, यकीनन मुझे पता है, इंसान है ना। लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि उफ़ ना करो, उफ़ ना करो, उफ़ की डेप्थ में जाएं और उनके आगे झुके रहो, उनके आगे झुके रहो। यानी वो जो मर्ज़ी कहें तुम लोग उनके आगे झुके रहो। तो ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, और माँ का दिल कितना दुखता होगा उस वक़्त, और वालिद का भी। और ख़ास कर जब औलाद माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करती है, मतलब वालिदैन ने अगर कोई बात समझाई है और आगे से औलाद बेटा हो या बेटी, बेटियां तो इतना नहीं करती, बेटे सम टाइम करते हैं ज़्यादा, बेटियां तो फिर भी माँ से या बाप से इतना नहीं करती, मुझे पता है। लेकिन बेटे जो हैं वो कभी ऊंचा बोल देते हैं कि अच्छा हुण मैं ताडे तुसी कर लो, खुद है चीज़ कर लो। तो इस तरह के और बहुत से मामला मतलब आगे तल्ख हो जाते हैं वालिदैन की नसीहतों से, या वालिदैन के किसी पूछ-गिछ से, या किसी सवाल जवाब से। तो वो तल्ख हो के माँ बाप को इस तरह तल्खी से जवाब दे के निकल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको पता है कि वालिदैन पे क्या गुजरती होगी। मैं आज सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि वालिदैन पे कितना बुरा असर पड़ता होगा उस वक़्त। मैंने कल आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ की मतलब एक समझें लाइन है कि वालिदैन, जब हम वालिदैन को भी कभी इस तरह बात करते हैं तो उन पे भी कितने दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे उन पे असरात पड़ते हैं, और ज़हन के असरात फिर सारे जिस्म पे असर करते हैं। तो जब कोई बच्चा, जब कोई औलाद इस तरह वालिदैन से तलखी से बोलेगी, तो इसका मतलब है कि गोया कि वो उनके आगे बंद बांध रहे हैं कि आइंदा से वो हमसे बात ना करे। इस तरह एक खौफ पैदा कर रहे हैं, वालिदैन और औलाद के दरमियान एक दीवार कायम कर रहे हैं कि वो जो बेसाख्तापन होता है इन प्यारे रिश्तों का, वालिदैन और औलाद, ये वो रिश्ता है, इसके आगे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ना बैक पे कोई रिश्ता है, ना आगे कोई रिश्ता है। इससे बढ़ के मतलब बाकी सब रिश्ते बहुत अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन जब वालिदैन के साथ कोई भी औलाद इस तरह डांटती है, ये डांट तो नहीं मैं कहूँगी, बुरे तरीके से बात करती है, तो वो एक बंद बांधती है कि आइंदा से हमसे बात ना करें। और वालिदैन भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो डरने लग जाते हैं। आप बहुत सी मिसालें हैं मेरे सामने, अपनी फैमिली में भी, फैमिली से बाहर भी, बहुत से वालिदैन अपनी औलाद से डरने लग जाते हैं बुढ़ापे में।
वो सोचते हैं कि इन्होंने ही हमें अब संभालना है, इन्होंने सब करना है, और फिर जब वो डांटते हैं तो वो चुप कर जाते हैं, और फिर आइंदा के लिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं बेटे से या औलाद से में मतलब करते, इसलिए नहीं करते कि ये फिर आगे से मुझे डांट देगा या मुझे आगे से फिर तलब हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे मतलब वो आपसे ऐसा प्यार करते हैं जो अल्लाह के बाद अगर कोई मखलूक आपसे प्यार कर सकती है तो वो वालिदैन है। मैंने बात स्टार्ट की प्यार से, मोहब्बत के एक चीज़ से, उस जज्बे से। तो ये वो जज्बा है जो मोहब्बत को मोहब्बत मांगती है। औलाद की सूरत में हमेशा ये होना चाहिए कि वालिदैन के आगे झुके रहो। अल्लाह का हुक्म है जब जिसके पास वापस जाना है, जो हमसे हर चीज़ दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो हमने तो अल्लाह का कहना मानना ही मानना है। तो वालिदैन का आगे कभी ना बोलो, कभी उनसे तल्ख कलामी ना करो, टोन अपनी नीचे रखो जब वालिदैन से बात करती हो। ये अब मेरे अल्लाह ने भी कहा है, और ये मैं अपने अल्लाह ही की बात आप तक भी पहुँचा रही हूँ कि अपने वालिदैन से हमेशा टोन नीचे रखो। ख़ास कर लड़के जो हैं, लड़कियां भी होती हैं, बाज़ लड़कियां बड़ी बदतमीज़ होती हैं, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी कर जाती हैं, मगर फिर भी वो उस तरह नहीं होती जिस तरह मैं कहती हूँ कि उनके बेटे होते हैं या लड़के होते हैं। क्योंकि लड़के का दिल सख्त होता है, मर्द का दिल सख्त होता है, उसे परवाह नहीं होती इन मोशंस की। तो मगर अल्लाह के मामले में कुछ और मोशन है, अल्लाह के मामले में तो कुछ और चीज़ें हैं, और इसी तरह अल्लाह ने वालिदैन के मामले में भी कुछ और आपको कहा है। तो ये आम तरह के मोशन से नहीं यूज़ हो सकते जो आप दूसरे लोगों से यूज़ करते हैं। वालिदैन से आपने अपनी टोन भी नीचे रखनी है, बात करनी है तो आजिज़ी से करनी है। ये अल्लाह ने कुरान का लफ्ज़ है कि अपने वालिदैन के साथ बात करो तो आजिज़ी से करो और उनके आगे झुके रहो। तो वालिदैन के साथ हमेशा मुशफ़क़ रवैया रखें। ये तो वालिदैन का मकाम है, लेकिन जो आपसे प्यार भी कर रहा है, आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके दोस्त सहबाब में, कहीं भी जो आपसे प्यार कर रहे हैं, उसको हमेशा प्यार से मिलें, प्यार से उससे बात करें, उसके साथ झूठ ना बोलें। उसे झूठ का पता चल जाता है, फिर बहुत दिल उसका ख़राब होता है, बहुत दिल टूटता है। और ये जब दिल ख़राब होते हैं, ज़हन पे असर पड़ते हैं, तो आपको पता है कि हमारा अल्लाह भी फिर दुखी होते हैं। तो कौन है जो अल्लाह पाक को दुखी करेगा? तो ये सारी बातें हैं जो मैं लेके रोज़ बैठ जाती हूँ आपके साथ। ये मेरे वो जज्बात हैं जो मैं अपनी व्लॉग फैमिली के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि शायद कोई बच्चे भी सुने मेरे ये व्लॉग्स, देखें, शायद उनको कोई एक भी अगर समझ जाए, इन चीज़ों से सीख ले ले, लर्न ले ले, तो शायद लर्निंग से उसकी ज़िंदगी समझ जाए। बाकी हैं तो सारे सियाने, मैं क्या कह सकती हूँ, हैं तो सब सियाने। ये हमारा आपको एक चीज़ दिखाने आ रही हूँ। मैंने कहा ये जो है ना, हमारा पेंडिंग था ये दरवाज़ा इसका। जब ये फेंस लगी थी ना, उस वक्त हमारे ये साथ जो हमसाया हैं आदल भाई, ये इन्होंने फिर कहा था कि उन्होंने फेंस लगाई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि ये दरवाज़ा भी मैं लगाऊंगा इसी में ना, फेंस के साथ। मगर ये अच्छा, ये क्या चक्कर है, ये इधर इन्होंने बंद किया, इसको लगाया। ये देखें, ये अभी दरवाज़ा बन रहा है, अब पता नहीं किस साइड पे खुलेगा और किस साइड पे, इधर बंद होगा मेरा ख्याल है। और एक चिटकनी, हाँ एक चिटकनी उन्होंने इधर भी लगा दी है, वो खुलेगा उधर और बंद इधर होगा, और अंदर से हम चिटकनी लगाएंगे। ये देखें, ये उन्होंने लकड़ी लगाई है, इसके साथ ये जाएगा दरवाज़ा। ये दरवाज़े की अभी उन्होंने ना ये पट्टियाँ सी सारी, ये जो चौकटे हैं ये लगाने हैं अभी ना, ये वाले ये। तो ये दरवाज़ा अभी नहीं लगा था, तकरीबन साल के बाद ये दरवाज़ा वो लगा रहे हैं।
तो इस तरह फिर ये कवर हो जाएगा। इधर हमारा जो है ना ये सारा, उधर से कोई आ रहा है तो ये बंद होगा दरवाज़ा, कोई मतलब ऐसी बात नहीं होगी। तो बाकी ये जो है ये खुला इसलिए रखा है इसको कि कोई चीज़ लेके आएँ या कुछ लेके आएँ तो दोनों तरफ ही खुला रहे कि कोई मसला ना पड़े। वैसे तो उन्होंने कहा था हम अपना भी वो अपना भी बुलका रहे हैं, वो देख। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम अपना भी साल लगाएंगे और ये भी लगाएंगे। तो ये देखें उन्होंने अपना भी लगा दिया। हाँ, ये अपना भी लगा रहे हैं। ये अपना भी उनका लग रहा है। ये पट्टा इधर लगा दिया, ये चिटकनी लगाई, उधर वो चिटकनी ऊपर लगाई है। ज़बरदस्त, अच्छा हो रहा है काम, तो अच्छा ही हो रहा है ना। चले, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि ये काम हो रहा है हमारे घर में। आज आके मेरा ख्याल है वो मुकम्मल कर देंगे। आज फ्राइडे है ना। हाँ, तो सब के सैटरडे को कोई दोस्त आने थे, इधर ही बाहर ही बैठेंगे सारे। तो उन्होंने कहा कि ये कि अगर दरवाज़ा लग जाए तो ज़रा हो जाता है, ज़रा एक आप अपनी चादर चार दीवारी के अंदर रह जाते हैं। तो इस वजह से ना ये देखे अभी ये सारे ओए आ गए, ये भट्टे सारे लगने। फ़िज़ा भी तैयार होके आ गई। फ़िज़ा कल जो दावत है उनकी असद साहब के दोस्तों की, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चूज़े खरीदनी है, इसलिए तैयार हो खड़े हो। हाँ हाँ ठीक। शाम को जाना ना, तैयार इसलिए होगी, निकलते अभी हैं फिर आते हैं। तो शाम को भी जाना है ना, शाम लोगों के साथ। हाँ हाँ, शाम को भी जाना है, काम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चल ये चक्कर है, बस अभी निकलते हैं। मैंने कहा कि व्यूवर्स को ना दरवाज़ा दिखाऊं, मैं इसलिए बाहर आई हूँ। मैं कहा ज़रा दरवाज़ा दिखाती हूँ। चलो चलते हैं, फिर आपको जब उधर से कुछ खरीदते हैं तो आपको दिखाते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, ये सीखी, इसमें क्या है फ़िज़ा 12% हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन वाला है। ओके, इसमें मैं ग्रीक, ये कहते हैं ग्रीक जो है बड़ी ज़बरदस्त है दही, ऑथेंटिक क्या कहते हैं। इधर से जो दही है ये एक पकड़ने मेरा ख्याल है ओरिजिनल एस्ट्रो की, ये 279 की है, एक पकड़ लेते हैं। हाँ ओरिजिनल। और सो सैलड कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ शावर जेल मॉइस की, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये मोइस के लिए लेनी है शावर जेल? अच्छा ले लो। ये चीज़ें हम इस सब ले रहे हैं, दोनों माँ बेटियाँ मिलकर। अब शावर जेल फ़िज़ा लेनी है मोइस के लिए। सैलड मेरा ख्याल है कि उधर ही है, वो मेन पे उधर सब्जी के साथ है सैलड सारा, क्योंकि हम बना बनाया सैलड लेना चाह रहे थे। बहुत ही ख़राब है लेटर, वो अंदर से कितना ख़राब है लेटर। देखो, नहीं है तो बेहतर फ़िज़ा जी खुद ही बना लवांगे बेटा। इतने सारे लेटर ही गले सड़े हुए, रहन दियो, दफ़ा करो, खुद बना लूँगा। इतना पैसा फिर भी लग जाता है, अल्लाह माफ़ करे, इतना सामान फिर भी आ गया। पापा रोज़ इतना पैसा लगता है, बड़ी महंगाई है व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा महंगाई है, अल्लाह माफ़ करे। इन्होंने महंगाई को कम करने के लिए सिंगल चीज़ों के पैकेट रख दिए, तो वो तो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये जैसे ये है, ये वाला, ये तो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। फ़िज़ा सामने रखने लगी है काउंटर पे, वाला करके ये सामान अब आया है। ओ फल्ला, इसको अब समेटना
अब बताएं, ये इतने लिफाफे जो हैं इनको अब रखना है फ्रिजों में। पहले तो हम आते हैं ना, तो असद साहब आते हैं तो असद साहब लाते हैं तो हम आगे से साफ़ कर देते हैं, फटाफट रख देते हैं सारा समेट के। अब असद साहब तो लाए नहीं, हम ही लाए हैं, तो हम ही ने इसको अब जो है ना इस सामान को समेटना सारे को। अब थके हुए आए हैं, इतनी भाई गर्मी है कि आपको क्या बताऊं, बुरा हाल हुआ हुआ है गर्मी से। तो अब थोड़ी देर बैठ के फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिज़ा भी बेचारी उधर जाके बैठ गई है, मैं भी बैठ गई। कुछ नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आप एसी में गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप गर्म समझे होते हैं। एसी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी इधर पड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया। उफ, अभी देखते हैं फिर उधर जो भी कुछ। लो जी, अब हम असद साहब के साथ निकले हैं, फिज़ा और मैं। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि मोएज़ को ना हम पिक करेंगे उसकी जॉब से, और फिर हम चारों के चारों ना आए खाना बाइट खाएंगे। तो हम चारों खाना बाइट खाएंगे और फिर उसके बाद कुछ काम है एक दो छोटा छोटा, और फिर वो काम करेंगे और फिर घर आएंगे हम। आज वीकेंड का नाइट है। हाँ जी, ये बताइए कि जो फ्राइडे नाइट होती है ना, वो स्पेशल नाइट है, इसे कहते हैं हम लोग कपल नाइट। तो 2 कपल जा रहे हैं और आज का जो खर्चा है ना वो बीवी शौहर को खिला रही है। ठीक है जी, ठीक है। एक कपल फिजा जान अपने हस्बैंड को, दूसरा कपल बुलबुल जान अपने हस्बैंड को। ठीक है जी फिजा जान, ठीक है। आज जो है वो देखते हैं क्या क्या हम खाएंगे। ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पे कुर्बान, हम में ऐसी क्या बात है, खाना क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए क्या हम आज खाना खाते हैं और आपको दिखाएंगे। फिर क्या बात आप करने लगे थे? मैंने कहा क्योंकि खर्चा बेगम ने करना है तो मैं अपनी बेगम का खर्चा बड़ा करवाना चाहता हूँ। तो मैंने ये जो है ना सोचा है कि गुड फूड खाऊं। मैंने हाथी के पाए ऑर्डर करने हैं, हाथी के पाए। अब अल्लाह करे कोई हाथी के पाए आपको मिल जाए, हम हाजिर हैं। आप बड़ा खर्चा डालें या छोटा डालें, हम हाजिर, हम घबराने वाले नहीं हैं। $1500 का एक पाया है उसका, हाथी का। तो लोग खाते हैं सब। हाँ इधर मिलता है हाथी का पाया। चाइनीज बहुत खाते हैं। पता नहीं मुझे, तो खाते हो। ऐसी हैरत की बात है, चाइनीज ये हर चीज खा जाता है। और उसकी स्किन देखिए आपने कितनी मुलायम है। लेकिन वो रोटियां नहीं ना खाता। रोटी नहीं, हाँ चावल खाता है वो, चावल खाता है। और 150 साल का बाबा है वो, लगता 65 साल का या 50 साल का। वो 150 बहुत केयर करते हैं। वो जो चावल भी डालते हैं ना, वो समझे सूप में डाल देते हैं, और सूप दुनिया जान की चीज़ों से बना हुआ, हर चीज़ है उस सूप में, जिसमें चिकना भी है। सूप की वो खाल नहीं उतारते, मैं सूप की कह रही हूँ, चिकन की या किसी चीज़ की, विद स्किन वो सूप में डालते हैं और वो पकाते हैं वो सब्जियां डालते हैं, क्या क्या करते हैं। जो स्किन होती है ना किसी भी फूड की, पता नहीं आप लोग क्यों उसको फेंक देते हैं, उसमें तो ज्यादा ताकत हाँ, होती है। वो छिलकों समेत डालेंगे छिलके, सब्जियां, वो ज्यादा ताकत हर चीज़। और मैं एक जगह काम करती थी, वहाँ सारे चाइनीज थे उस बिल्डिंग में, तो उन्होंने कोई 10 बजे या 9 बजे वो रख देना ऊपर, वो पक रहा है, हर चीज़ उसमें डाल दी हुई है। और पक के दोपहर को उन्होंने वो उसमें मतलब कोई बर्गर भी अगर डालना, ये जो बंद होते हैं कई दफ़ा वो भी डाल के खा लेते हैं। लेकिन उस शोरबे में वो शोरबा सा बना के 2 चुटकियाँ पकड़ी या 2 डंडियाँ सी, उनके साथ अगर चावल है तो उनके साथ। उफ, तो वो कहाँ मोटे होंगे जिन्होंने रोटी नहीं खानी कभी, जिन्होंने कभी ऐसी। और इतनी बेहतरीन सूप बनाते हैं वो। नूडल डाल लेते होंगे फिजा, मेरा ख्याल है। हाँ, उसमें नूडल डालते हैं। मतलब मैंने देखा है उनका जो देगचा है ना, वो पक रहा है, कोई 10 घंटे पकता रहता है, सुबह 9 से 2 बजे तक जब वो लंच करते हैं। वो उनके खाने बाबा वही जाने, ये चक्कर है सारे। तो चलो फिर खाते हैं जब, तो आपसे बात करते हैं।
ट्रस्ट एंड क्रेव भी जा सकते पिज्जा नहीं। क्यों जी बच्चों, किधर जाने का प्रोग्राम बनाया है? कोई तो नहीं, प्रोग्राम ही तो नहीं बना। प्रोग्राम नहीं बन रहा दोनों का। नाम कंट्री का फ्लैग है। ये कोलंबिया है शायद। शवारमा भी होगा जी। शवारमा भी सोचा मैंने। सोचा है? शवारमा भी अच्छा ट्राई सो- करना, तो शवारमा- स्नैक का करना चाहिए। शवारमा अभी कोई ना अब किसी अच्छे को नहीं। समझ नहीं आ रही कि खाना क्या है। मैं तो बर्गर खाऊं। मोएस कह रहे हैं कि मैं एक प्रो बर्गर है वो खाऊंगा, ट्राई करूंगा कैसा है पहली दफा। असद साहब कह रहे हैं नीडोज। ये नहीं, मैं नीडोज। कुछ नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा सब कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ जो भी खाएंगे मैं खा लूंगा, हाँ लेकिन अगर चॉइस करवानी है तो बर्गर। हमारा मशरूम नहीं है। ठीक है। और फिजा जान क्या कह रही हैं? तो तुम ओकलाहोमा खा लो, बस आती है। मुझे मॉइस वाले का मेन्यू नहीं अच्छा लगा। क्योंकि अच्छा। मशरूम बर्गर नहीं है ना। ओके पिज्जा को ओके। मशरूम बर्गर। अला फिजा को मशरूम तो पसंद है। कोई मशरूम नहीं है ना, उस- बर्गर उस प्रो। मेन्यू- अच्छा अच्छा मेन्यू मशरूम। में 3 बर्गर है। अच्छा 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 अच्छा। एक बस एक ही लगा है मुझे जो मैं खा सकती हूँ, वो क्लासिक बीफ बर्गर जो होता है। चलो नहीं, फिर ऐसा करते हैं ना कि टेक आउट कर लेते हैं। ओकलाहोमा से मशरूम उठाओ, ठीक है। मैं बर्गर प्रो से अपना बर्गर उठाता हूँ, शाबा भी अपना उठाएं, और फिर हम सारे पॉपॉयज जाके बैठते हैं कि मादर पॉपॉयज खाएं और हम अपने अपने बर्गर खाएं। चलो जी, मोएस ने फैसला कर दिया तो मैं उसी पे फिर चलूंगी जो मेरे पुत्र ने फैसला कर दिया। सबसे अच्छा फैसला। तो पोपाई वाले ने सिक्योरिटी गार्ड भेजने कि इन 3 लोगों को जो आउटसाइडर्स हैं इनको बाहर फेंको। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों फिजा? मोएस हो सकता है। क्यों? मानो नहीं पता। मानो को पता हो। वहाँ से एक बर्गर लेके 3 और बर्गर लेके बैठे हैं सारे। उनको क्या पता? क्यों अंधे हैं वो सारे? नहीं, हम पर्स में से निकालेंगे ना, जेबों से निकालेंगे फिर भी बर्गर। अंधे हैं वो सारे। बर्गर जेबों से निकलेंगे। ले जी, अब कुछ तो डिसाइड हुआ है, देखो अब आगे क्या होता है। अभी हम मिसेज आगा फिर रहे हैं इस वक्त। मेरा मूड है बस चटपटा सा मजेदार सा हो चीज बस। देसी। नहीं उस तरह का देसी मैं नहीं चाह रही जो घरों में पके हुए तो हैं। फ्रूट चाट खा लें। वो देसी मैं बिल्कुल नहीं चाह रही। फ्रूट चाट नहीं वो दही भल्ले। खाना है। दही भल्ले। दही भल्ले भी खाना नहीं है, अच्छा। खाना है प्रॉपर। तभी तो मैं कह रही थी कि नान कबाब जाके फूले रूज। वो कहिएगा फूले रूज फूले फिजा माता ने खाया हो? हाँ। समझाओ। क्या तो फिर? वो जो चावल और जो सब्जियां नहीं लेते हम मॉल से। नहीं नहीं, मैं तो कभी फिजा के साथ खाती ही नहीं। नहीं चलो ठीक है, सारे बर्गर लेना चाहते हैं तो मैं भी बर्गर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। सब बर्गर खाएं, बर्गर का मूड है तो ठीक है। और नूडल खा ले। यार देखा वैसे कैसा कैसा मजाक कर रहा है आज। कोई 50 मिनट की ड्राइव कर गया हूँ मैं, और ये अभी तक डिसाइड कुछ नहीं हुआ कि किसने क्या खाना है। मुझे तो पता है मैंने क्या खाना है, मेरा तो डिसाइडेड है। तभी वो मजाक कर रहा है, डिसाइड खुद कर चुका हुआ है, हमसे मजाकियां कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ व्यूअर्स, मैं तो कह रहा हूँ कि अपना अपना करते हैं। जरूरी नहीं है सारों ने सेम ही चीज नहीं फिर अपना अपना क्या कल्ला कल्ला उतार दें तुम लोगों को। नहीं, एक नहीं, को सारे एक एक जगह साथ उतारे, बैठे। एक को एक जगह, एक जगह और नहीं, सब एक मुझे- जगह। पे जब बचता है वो गाड़ी लेके हाँ बस यही हो सकता है। खा के पिक कर ले। पहले मैं खाऊंगा, आप लोग देखें, अच्छा फिर दूसरी लोकेशन जाएंगे, जो आखिरी बंदा बंदा होगा, खाएगा। जो आखिरी बंदा होगा वो बेहोश हो जाएगा तब तक, क्योंकि सारे सुबह से भूखे। क्योंकि हम भी तो खाना होना होता है ना पुत्र। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। चलो लेडीज आपको पहले खिलाएंगे फिर हम खा लेंगे। हाँ चलें देख लेते हैं, नहीं, ये नहीं करना हमने। देखते हैं। सीसागा में घूम रहे हैं, वो स्टार्ट करके बोलते आपको मैं बता दूं है क्या, हैं। पहले ही बोल दिए स्टार्ट, बाद में हुआ है। हम वैसे मिसिसागा में घूम ये रहे हैं इस बड़ी वक्त। फेमस बिल्डिंग आ गई। ये फेमस बिल्डिंग्स इर्द गिर्द सारी, खूबसूरत एरिया। और फिर देखते हैं अब क्या, इधर तक तो पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ चेक करते हैं कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। ये हम रॉजर भी आए हुए थे इधर, क्योंकि अपना फ़ोन चेंज कर रहे हैं और फ़ोन की सिम कनेक्शन। तो ये स्केल 1 है जिधर रॉजर है, तो इस वजह से हम इधर ये खड़े हैं सारे
रॉजर का काम हो गया ख़त्म, क्योंकि आईडी मोए चलाना भूल गए अपनी, तो उन्होंने कहा आईडी के बगैर नहीं सिम से नहीं डल सकती। तो खैर अब देखते हैं खाना किधर खाना है, कुछ खाने की अब समझ नहीं आ रही। अभी चक्कर चेक शाहजहां जो है ना गाड़ी से मेरा फ़ोन लाए हैं और उनका अपना फ़ोन नहीं है, तो वो कह रहे हैं मेरा फ़ोन किधर चला, क्योंकि घर से वो दोनों फ़ोन लेके आए थे, मेरा भी और अपना भी। और वो पॉकेट में बैक पॉकेट होती है उनकी पैंट की, हमेशा उधर दोनों फ़ोन रखते हैं। अब पता नहीं वो फ़ोन जो है किधर रह गया। अब गाड़ी में दोनों बाप बेटा गए हैं चेक करने के लिए, क्योंकि फ़ोन सिर्फ मेरा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, दूसरा फ़ोन कोई नहीं। तो अल्लाह ताला खैर करे, उनका फ़ोन निकला है। आजकल आपको पता है फ़ोन भी इतना महंगा है, फ़ोन कौन से सस्ते हैं। राइट पास लेफ्ट, रैथबर्न राइट, हम निकल आए हैं अब। बस सेंटेनियल पार्कवे लेफ्ट। तो नहीं रुके, किसी का मूड नहीं बना, वो इस कुछ और खाना चाहता है, हम कुछ और खाएंगे, तो सब फिर जो है ना निकल आए उधर से स्केयर वन से। ये देखें जी, इधर आए हैं, ये देखते हैं क्या है इनका खाना पीना कैसा है। अफ़गानियों का है, अफ़गानिस्तान। ये हमारा मेरा और मोइस का तो बर्गर आ गया है। मुझे और इसको शौक था कि आज बर्गर खड़काते हैं, और वो अपना बैठ के मियाँ बीवी और इधर मियाँ बीवी हम बैठ के ये देखें बर्गर मेरा। उधर से भी इधर बड़ा सारा गोश्त जबरदस्त। इधर है। मेसी जो है ये इन फॉर्म एंड में पास गोल। ये बर्गर और वो चिप्स हैं और ये कोक है और साहब। वो उधर बैठ के खा रहे हैं। और वो मोए जाम खा रहा है, उसका उधर है। हम अभी मतलब हमारा भी हाँ, हम कुछ और खाएंगे। आखिरकार नान कबाब पे ही आकर टिके हैं मैं और फिज़ा। हमने कहा हम नान कबाब ही लेंगे चाहे कुछ हो जाए। चलो एक प्रॉपर खाना है ना, मैं इसलिए इसको तरजीह देती हूँ कि एक प्रॉपर खाना है। नान भी हैं, साथ आपका चावल भी हैं, सब है, कबाब सारा कुछ। चले आए माशाल्लाह। ये इनको जो है ना नान कबाब लड़ गए, इनको नशा चढ़ गया है। उसके अलावा ना ये कुछ सोचते हैं ना कोई बोलते हैं, पता नहीं इधर इनको क्या इसमें गिद्दड़ सिंगीर आ गई है जो पीछा नहीं छोड़ते। फिज़ा जान को ज़्यादा पसंद है, इनको भी खैर बहुत पसंद है, लेकिन इन दोनों की वजह से हम भी फिर जंप मार देते हैं। तो अब इधर देखते हैं क्या खाती हैं जी। आए यहाँ हवाएं इतनी होती हैं। आजा मोहित। रफ काले रफ अले नेक्स्ट रफ वेट वो आ रही है नेक्स्ट, वो आ रही है। खा खू के मैं भी खा गई हूँ, हालांकि बर्गर भी खाया है, ये भी खाया। देख के आप यूँ खड़ी हो, इधर ही खड़ी रहें, ये देखें आपके सर के ऊपर ना सूरज चमक रहा है। अच्छा, ये टीवी में कार्टून में दिखाते जो फरिश्ता होता था ना, उसके सर पे बल्ब चलता है, ये आपके सर पे बल्ब जल रहा है। फरिश्ता हैं आप, अल्लाह का बल्ब चल रहा है, अल्लाह का बल्ब चल रहा है। वो देखें जहाज आ रहा है, वो उधर को जा रहा है, वो इधर नहीं ना, वो आपके ऊपर से गुजरा है, उसकी मंजिल उधर है। ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है सर। नहीं ये इधर से, हमारे इधर से भी अभी गुजरा है, ये ऊपर से। ये बड़े वाला है, डिफरेंट रनवे पे जाएगा। और मोए ये नीचे उतर रहा है। एयरपोर्ट तो यही है। हाँ, चले निकले, अर्जेंटीना का मैच चल रहा है। अर्जेंटीना हार रही है।
2-2 हो गया है, बिल्कुल थकी हुई पुरानी बेचारी मोहल्ला टीम नहीं होती, मोहल्ला टीम, उससे 2-2 पे लेवल आ गई है अर्जेंटीना। ये सारी जो होती ना टॉप की टीमें, वो सारी आउट होती जा रही हैं। अफ्रीकन टीमें बहुत सारी अंदर आ गई हैं और जीत रही हैं, और कमज़ोर टीमें हैं वो जीत रही हैं। चलें फिजा जान।